Good morning, everyone. So let's begin today's class. We have already gone through Python pandas and the characteristics of Python pandas. We have seen what data structures are. We have seen how many types of data structures are there, like series data structure and data frame data structure. And we have completely gone through the process of we can say defining a series data structure along with creation of series data structure with indexes and data and the various operations those can be performed on series data structure as well. So everything related to series data structure has been already understood, and we have also seen some of the example programs that they have given to us. Now in today's class we will be dealing with the second type of data structure that we have, that is data frame data structure. All right. So in this data frame data structure, let us see through the definition what this explains all about. A data frame in another pandas structure which stores data in two-dimensional way. As we have already seen in series data structure, we knew that it is a one-dimensional array, one-dimensional way of storing data. Now we have moved to the two-dimensional way of storing data, and that two-dimensional way of storing data is known as what? Is known as data frame data structure. It is actually a two-dimensional tabular and spreadsheet like labeled array, है ना. ये क्या है? ये एक टेब्यूलर मतलब इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल जो हमने कभी देखा होगा, बॉक्सेस के फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम्स होती हैं जिसमें. तो इट इज़ इन दैट फॉर्म एक्चुअली, and it is having collection of some columns, and data has been arranged in those different columns, and there is no such limitation for the data that can be stored. The kind of data that can be stored can be like numeric, string, floating point or boolean. So these things are already given to us over here. Okay, so now as we have already come to know that data frame data structure is a two-dimensional way of storing data, and there are various numbers of columns under which different data values will be held in those columns, and the type of data that it can hold can be like numeric, string, floating or boolean. Now let's move further and see how to declare it and everything. Okay, before that they have also given us one example. Over here you can see the number of rows. I am just typing it. This is the first row, second, third, fourth or fifth. For counting the total number of what we can say elements in our data structure, that is data frame data structure, what we need to do, we need to multiply the number of columns, whatever it may be, into the number of rows, and the output that you will be getting will be what? Will be the total elements. Okay, now when you are going to count the columns and rows, so for counting it will be beginning with 1 only, not with 0, but as per representation, अगर आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में देखो तो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होते हैं, पर हमको काउंट करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 और 5, है ना. 5 नंबर ऑफ रोज हैं और 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 हो जाएगा. तो आंसर आपका आ जाएगा 25. सो 25 विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस डेटा स्ट्रक्चर. जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि जिसमें 7 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और 9 नंबर ऑफ, अगर क्या बोला है, नंबर ऑफ, हाँ 9 नंबर ऑफ रोज़ होंगी या ऐसा कुछ भी होगा. तो ऐसे में आपको टोटल एलिमेंट्स फाइंड करना है, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट डेटा स्ट्रक्चर. सो दिस इज एक्सप्लेन टू अस. Now, we are also given with some major characteristics of data frame data structure. Let us see what those characteristics are. Okay, so
इट हैज़ टू इंडेक्सेस और वी कैन से दैट टू एक्सेस। यहाँ पर दो इंडेक्स होते हैं या आप बोल सकते हो दो एक्सेस बोल सकते हैं, एक्सेस इज़ द बेटर वे। तो यहाँ पर पहली एक्सेस कौन सी होती है, तो एक होती है एक्सेस ज़ीरो और एक होती है एक्सेस वन। एक्सेस ज़ीरो जो होती है वो हमेशा रोज़ के बारे में बात करती है और एक्सेस वन जो होती है वो हमेशा कॉलम्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एक्सेसेस हमको देखने को मिलेंगी, वन ज़ीरो और वन। ठीक है, तो रो के लिए होता है ज़ीरो और कॉलम के लिए होता है एक्सेस वन। नाउ यहाँ पर देखो इन्होंने और बताया हुआ है कि रो जो आपका होता है, रो इंडेक्स जो होता है मतलब एक्सेस ज़ीरो जिसको रो इंडेक्स भी बोलते हैं, उसको एक कॉमन टर्म बोली जाती है जो होती है इंडेक्स। और जो आपकी रो वन होती है जिसको कॉलम बोला जाता है, उसके लिए नाम दिया गया है कॉलम नेम। तो ये कुछ बेसिक नाम है जो हमको काम आ सकते हैं। इंडेक्स अगर बात करें, इंडेक्स बोला तो वो क्या होगा, रोज़ की बात करोगे। कॉलम नेम बोला तो क्या होगा, वो कॉलम्स की बात करेंगे। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर सिंपली इतना ध्यान रखो कि अगर आप इनकी बात कर रहे हो, मतलब एलिमेंट्स को अगर टॉप टू डाउन देख रहे हो, तो ये आप किन की बात कर रहे हो, तो आप इंडेक्स की बात कर रहे हो। और अगर आप एलिमेंट्स को इस तरीके से देखते हो तो ये आप किन की बात कर रहे हो, तो ये आप बात कर रहे हो कॉलम नेम की। तो ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द इंडेक्सेस और कैन बी ऑफ नंबर्स और लेटर्स और स्ट्रिंग। जैसा कि हमारा सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर में था, वहाँ पर ABCD भी इंडेक्स हो सकता था, 1 2 3 4 भी इंडेक्स हो सकता था, और रोमन में 1 2 3 4 भी इंडेक्स हो सकता था। मतलब कि कुछ भी आप नंबर्स ले सकते हो, लेटर्स ले सकते हो, स्ट्रिंग्स ले सकते हो। मतलब यहाँ पर अलग अलग वैरायटी का डेटा यहाँ पर एज अ इंडेक्स होल्ड किया जा सकता है, जैसा कि हमारा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में केस था। सेम केस इज़ विथ डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर एज वेल। यहाँ पर कुछ इन्होंने सैम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो इन सैम्पल्स को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का आपका डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर दिखने वाला है। तो ये इन्होंने एक आपको ये एक डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर बना के बताया और एक ये दूसरा डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर बनाकर बताया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो, अगर मैं रोज़ की बात करूँ तो रोज़ आपको दिख रही है 0 1 2 3 4, और दूसरे वाले में रोज़ की बात करूँ तो ABCDE। कॉलम्स की अगर बात करूँ तो N मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम, और सेकंड की बात करूँ तो ABCDEF। तो यहाँ पर ये कुछ इन्होंने कुछ से सैम्पल डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ पर बनाकर बताए हुए हैं। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हमको पता चल जाएंगी। ये जो होती है हमारी, इसको हमने पहले ही देखा था, इसको रो इंडेक्स बोलते हैं, मतलब ये ज़ीरो एक्सेस की हम बात कर रहे हैं। और ये जो होता है यहाँ पर जो सारे नाम्स लिखे होते हैं, ये हमारा कॉलम इंडेक्स होता है। तो कॉलम इंडेक्स को हम एक्सेस वन का नाम देते हैं, और ये जो कहलाते हैं ये कॉलम नेम्स कहलाते हैं, और ये जो चीज़ें लिखी होती है ये इंडेक्स कहलाती हैं। इतनी चीज़ें हमको ऑलरेडी पता है। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये सारी की सारी क्या है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। और इन वैल्यूज़ में एक वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये नैन, और ये नैन। तो इसका नंबर होता है कि यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू है या कोई वैल्यू जो छूटी हुई है, तो उसके फॉर्म में यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है, यहाँ पर इन्होंने नैन लिख रखा है। तो ये भी हमको ऑलरेडी सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर को देखकर पता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर इज़ नो कंडीशन ऑफ हैविंग ऑल डेटा ऑफ सेम टाइप अक्रॉस कॉलम्स, इट्स कॉलम्स कैन हैव डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हाँ, ये भी एक ख़ास बात है। यहाँ पर जैसे कि कॉलम्स होते हैं ना, तो कॉलम्स में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही टाइप का या एक ही डेटा टाइप का डेटा हो। जैसे कि ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो आप देख सकते हो कि पहला कॉलम जो है, ये जो n वाला है, यहाँ पर कौन सा डेटा है, यहाँ पर इंटीजर डेटा है। सेकंड और थर्ड में अगर आप देखोगे तो इन दोनों में कौन सा डेटा है, तो इन दोनों में फ्लोट टाइप ऑफ डेटा है। तो मतलब डेटा टाइप्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के डेटा टाइप्स रखे जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं अलग अलग कॉलम्स के लिए। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोगों को सेम डेटा टाइप ही यूज़ करना है अक्रॉस एवरीवेयर, अक्रॉस ऑल द कॉलम्स। अगला दिया हुआ, यू कैन ईजिली चेंज इट्स वैल्यूज़। हम वैल्यूज़ जैसे कि हमने आखिरी में अभी कल की क्लास में देखा था कि सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर्स की वैल्यूज़ भी चेंज की जा सकती थी। जैसे कि OB1 नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है,
उसके ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू मुझे रखनी है, पहले 1 थी, अब मुझे उस वैल्यू को 1 से चेंज करके 10 करना है। तो इस तरीके से अगर आप कोड करोगे तो आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। सिमिलरली देयर आर सम रूल्स यूजिंग विच यू कैन चेंज द नेम्स ऑफ डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर एज वेल। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है हमारे लिए। आगे बढ़ता है, यू कैन ऐड और डिलीट रोज एंड कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम, इन अदर वर्ड्स इट इज़ साइज म्यूटेबल। मतलब यहाँ पर भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन है कि आप लोग रोज़ और कॉलम्स जो हैं उन रोज़ और कॉलम्स के डेटा को ऐड या रिमूव कर सकते हो, और ये एडिशन और डिलीशन पॉसिबल है, मतलब ये चेंज हो सकते हैं, मतलब म्यूटेबल है ना। तो साइज़ म्यूटेबल और वैल्यू म्यूटेबल दोनों होते हैं डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर्स, दोनों चीज़ आप चेंज कर सकते हो एज़ पर आवर नीड्स। आगे बढ़ता है, अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको सीखना है वो है क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करना है, जैसे कि सीरीज़ डेटा फ्रेम क्रिएट करते थे, सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, उसी तरीके से इसको भी क्रिएट करेंगे। वहाँ पर हम लिखते थे pd.series फंक्शन, है ना, इस तरीके से लिखते थे pd.series फंक्शन। अब चूंकि नाम चेंज हो गया है तो अब आप क्या लिखोगे, पांडास डॉट या pd.डेटा फ्रेम फंक्शन, एज सिंपल एज दैट। जो नाम वहाँ पर यूज़ करते थे वहाँ पे अब बस सीरीज़ फंक्शन की जगह डेटा फ्रेम फंक्शन लगा दोगे। अगर आपने ऊपर ऐसा कोई इंपोर्ट लगा रखा है, इंपोर्ट पांडास एज pd, तो आप सिंपली pd.डेटा फ्रेम फंक्शन भी लगा सकते हो, और नहीं तो आपको पूरा फिर लिखना पड़ेगा पांडास डॉट और फिर डेटा फ्रेम। जगह नहीं है इसलिए डीएफ लिख रहा हूँ, डीएफ नहीं लिखना है आपको, पूरा डेटा फ्रेम लिखना है। तो ये ऐसा यहाँ पर किया जा सकता है। अगली चीज़ समझने वाली वो देखते हैं। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने df1, क्योंकि डेटा फ्रेम है तो df नाम चलेगा। वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट नाम ले रहे थे obj1 ob1 ob2, यहाँ पर हम df1 df2 df3 ऐसे नाम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर नाम दे दिया, यहाँ पर पांडास डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पास होती है, तो पास होता है एक 2D डेटा स्ट्रक्चर पास होता है, और उसके बाद कॉलम्स पास होते हैं, और उसके बाद इंडेक्स पास होता है। जो चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर लिखी हुई है वो सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ ये जो लिखा हुआ है ऊपर वाला 2D डेटा स्ट्रक्चर, वही बस एक यहाँ पर परमानेंट या रेकमेंडेड या कंपलसरी वैल्यू है। बाकी कॉलम्स का सीक्वेंस क्या होगा या इंडेक्स का सीक्वेंस क्या होगा वो यहाँ पर आप नहीं भी दोगे तो भी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कुछ होती हैं जिनका यूज़ करके वो अलॉटमेंट वहाँ पर कर देता है। आगे बढ़ते हैं। अब डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट चलो देख लिया कि बना सकते हैं। अब डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो देखते हैं। देखो 2D डेटा स्ट्रक्चर जो ये लिखा हुआ है ना 2D डेटा स्ट्रक्चर, इसमें क्या वैल्यूज़ स्टोर की जाती हैं, तो इसमें डेटा वैल्यूज़ स्टोर की जाती है। जहाँ पर हम वहाँ पर डेटा लिख रहे थे ना, डेटा कॉमा इंडेक्स लिखते थे सीरीज़ में, तो डेटा हम कहाँ पर डालते थे, डेटा के अंदर। यहाँ पर 2D डेटा स्ट्रक्चर नाम दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लाइन का नहीं है, ये मल्टीपल लाइंस का है, तो इसलिए यहाँ पर इसको 2D डेटा स्ट्रक्चर नाम इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पर हमको पता चल गया है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2D डेटा स्ट्रक्चर लिखेंगे और इसमें डेटा वैल्यूज़ स्टोर की जाएंगी। अब देखते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर जब सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने वहाँ पर भी देखा था कि कौन कौन सा डेटा उसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। तो हमने देखा था लिस्ट उसके अंदर यूज़ हो सकती है, डिक्शनरी उसके अंदर यूज़ हो सकती है, उसके अंदर कुछ नंपाई डेटा यूज़ हो सकता है, और क्या देखा था उसके अंदर कुछ स्केलर वैल्यूज़ यूज़ हो सकती थी। तो इस तरीके का कुछ डेटा हमने देखा था कि ये सारी वैल्यूज़ सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर के साथ यूज़ हो सकती है। बट यहाँ पर इस 2D डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ पास हो सकती हैं तो वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो कौन कौन सी डेटा वैल्यूज़ पास हो सकती हैं, तो पहला पास हो सकता है 2 डायमेंशनल डिक्शनरीज़। कुछ डिक्शनरीज़ की वैल्यू पास हो सकती हैं जहाँ पर कुछ लिस्ट बनी हो डिक्शनरी के अंदर, या डिक्शनरी के अंदर कुछ एनडी एरेज बने हो, या डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी कुछ एक सीरीज़ ऑब्जेक्ट बना हुआ हो। तो इस तरीके से 3 तरीके से हम डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। पहला क्या हो सकता है, कुछ ऐसी डिक्शनरीज़ जिसमें ऑलरेडी कुछ लिस्ट का यूज़ करके डिक्शनरी बनाई हो, या तो कुछ ऐसी डिक्शनरीज़ जो ऑलरेडी कुछ एनडी एरेज का यूज़ करके डिक्शनरी बनाई गई हो, या तो कुछ ऐसी डिक्शनरीज़ जो कि कुछ सीरीज ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके डिक्शनरीज़ क्रिएट की गई हो। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। सेकंड जो वहाँ पर था वो यहाँ पर भी है,
ND एरेज भी यूज़ किए जा सकते हैं, numpy एरेज भी यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। एक और चीज़, यहाँ पर सीरीज़ टाइप ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे थे, जो आपने सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर में बनाया, वो खुद भी इन द फॉर्म ऑफ 2D डेटा स्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ 2D डेटा स्ट्रक्चर वी कैन होल्ड सीरीज़ टाइप ऑब्जेक्ट्स एज वेल। और एक और चौथी बात, यहाँ पर कोई एक डेटा फ्रेम बनाते समय कोई दूसरे डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट्स को भी आप डेटा 2D डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होल्ड कर सकते हो। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेटा की जगह पर स्टोर की जा सकती है? तो द फर्स्ट वन इज़ 2 डायमेंशनल डिक्शनरी, 2 डायमेंशनल एरेज, सीरीज ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एंड अनदर डेटा फ्रेम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग कह सकते हो कि डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर बनाते समय काम आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया है एक एक करके। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन किसकी होगी? जो सबसे पहले था, तो सबसे पहले इन्होंने किसके बारे में बात की थी? तो 2 डायमेंशनल डिक्शनरी की बात करी थी। अब 2 डायमेंशनल डिक्शनरी में भी बहुत सारे तरीके थे, तो आज हम देखने वाले हैं पहला तरीका, जिसमें आप लोग क्या करने वाले हो, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने वाले हो 2 डायमेंशनल डिक्शनरी का यूज़ करके, जिसमें क्या होंगी, वैल्यूज़ किस फॉर्म में होंगी? आपकी वैल्यूज़ होंगी लिस्ट या ND एरेज के फॉर्म में। जब कभी आपके 2 डायमेंशनल डिक्शनरी में डेटा वैल्यूज़ लिस्ट और ND एरेज के फॉर्म में होती है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हाउ यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया है, सिर्फ इतने एरिया को हम थोड़ा सा डिटेल में फोकस करेंगे और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ क्या है। देखते हैं, यहाँ पर एक डिक्शनरी 1 क्रिएट की गई है। डिक्शनरी हम ऑलरेडी जानते हैं वो काय से बनती है। सो डिक्शनरी इज क्रिएटिंग यूजिंग की वैल्यू पेयर्स सेपरेटेड बाय कोलन। की वैल्यू पेयर से बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखो, ये एक स्टूडेंट एक की है और स्टूडेंट्स के अंदर 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ पास की गई हैं स्टूडेंट्स के अंदर, और ये पांचों वैल्यूज़ अगर आप ध्यान दो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास की गई हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्या है, ये एक लिस्ट है। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये की था, इस की के अंदर ये जो थी ये वैल्यूज़ थी, तो ये एक की वैल्यू पेयर हो गया। कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर लास्ट में, आप देख सकते हो। फिर दूसरी एक डिक्शनरी है जो कि है मार्क्स। इस मार्क्स जो कि डिक्ट1 है, जिसमें से दूसरा एक आप कह सकते हो एलिमेंट जो यहाँ पर लगा हुआ है वो है मार्क्स। ये एक की है और ये उसकी वैल्यूज़ हैं। तीसरा कॉमा लगा के आगे यहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है। कॉमा के बाद जो तीसरी वैल्यू पास की गई है वो है अगेन की वैल्यू पेयर, स्पोर्ट और क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, ये इसकी वैल्यूज़। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी हमेशा आप देखना उसकी बिगिनिंग होगी तो करली ब्रैकेट से होगी। डिक्शनरी करली ब्रैकेट से बिगिन होती है और करली ब्रैकेट पे एंड होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये करली ब्रैकेट में ही ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर होल्ड किया हुआ है ना। मतलब ये एक डिक्शनरी है और ये हमेशा उसके अंदर किस फॉर्म में होती है, तो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर के फॉर्म में बनी हुई है। जैसे आपने इस डिक्ट1 को प्रिंट किया तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिला, मार्क्स, स्पोर्ट और स्टूडेंट्स। हमने ऑलरेडी देखा था कि आप डिक्शनरी किसी भी ऑर्डर में बना लो तो उसका प्रिंटिंग का कोई ऑर्डर नहीं होता। तो उसने मार्क्स को पहले ले लिया, स्पोर्ट को बाद में ले लिया, स्टूडेंट्स को उसके बाद ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी डिक्शनरी में जो डेटा था वो उसी फॉर्म में आया हुआ है। डेटा जैसा था वैसे ही है। वैल्यूज़ डेटा की जो थी वो वही है, वैल्यूज़ डेटा की चेंज नहीं हुई है, सिंपली ऑर्डर चेंज हुआ है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या बोला कि ये आपके पास ऑलरेडी एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी का यूज़ करके आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो आप कैसे क्रिएट करोगे, तो चलो देखते हैं। क्रिएट करने के लिए ये लाइन को देखो, क्या किया हमने, DTF1। यहाँ पे जैसे हम OBJ1 OBJ2 देते थे, यहाँ पे हमने दे दिया DTF1। DTF1 के बाद लिख दिया हमने PD.DataFrame फंक्शन। अब PD.DataFrame फंक्शन के अंदर सिंपली जो भी हमारी डिक्शनरी थी डिक्ट1 उसको पास कर दिया, और आखिरी में प्रिंट करने के लिए आपने सिंपली जो भी आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था DTF1, इस DTF1 को लिखकर एंटर प्रेस कर दिया।
जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करोगे आप देखोगे कि जो भी आपकी कीज़ थी, ठीक है, जो भी आपकी कीज़ थी वो सारी की सारी कीज़ ने क्या पोजीशन ले ली है, एक्सिस 1 की पोजीशन ले ली है। और एक्सिस 1 की पोजीशन को क्या बोला जाता है, कॉलम नेम। तो ये पोजीशन उन्होंने ले ली है। और जितनी भी आपकी वैल्यूज़ थी, वो जो वैल्यूज़ थी, ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ ने कौन सी जगह ले ली, तो ये वैल्यूज़ ने ले ली रोज़ की जगह। इन रोज़ को क्या बोलते हैं, एक्सिस 0। ठीक है, तो एक्सिस 0 की जगह ले ली आपकी वैल्यूज़ ने, और जो एक्सिस 1 की जगह है वो एक्सिस 1 की जगह किसने ले ली, तो आपके जो भी कीज़ थे इस डिक्शनरी के, वो कीज़ जो हैं वो यहाँ पर आपके सारे के सारे कॉलम नेम के फॉर्म में, एक्सिस 1 के फॉर्म में स्टोर हुए हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आपको इस तरीके का एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर मिला है। अब देखो ये जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना, आपने कोई इंडेक्स वैल्यू असाइन की क्या, नहीं की, तो ऑटोमेटिकली आप इसका इंडेक्स देख सकते हो। ये इंडेक्स किस फॉर्म में आया है, तो ये इंडेक्स आपका आया है 0 1 2 3 4 के फॉर्म में, है ना। तो ये आपका इंडेक्स अलग से 0 1 2 3 4 फॉर्म, जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है वो जनरेट हो गई हैं। और यहाँ पर आपको लिख कर भी बताया है कि इंडेक्सेस आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड, मतलब कि यहाँ पर इनको आपको जनरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं लिख रहे हो सो डेफिनेटली इट विल बी जनरेटिंग इट बाय इटसेल्फ। अब इन्होंने एक और चीज़ बताई कि चलो भैया डिक्शनरी बनाते तो हमको आती थी, डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो डेटा फ्रेम फंक्शन लगा दिया, और फंक्शन के अंदर मतलब आर्ग्यूमेंट्स में, मतलब जो आपका ये ब्रैकेट होता है, इसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ लिखना, इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर आपने आर्ग्यूमेंट में क्या पास कर दिया, तो आर्ग्यूमेंट पे आपने DTF1 पास कर दिया। DTF1 पास किया आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, तो आपका जो DTF1 था वो आपको प्रिंट होकर मिल गया। बट अब देखो यहाँ पर कुछ और भी बोला हुआ है, उसको देखते हैं। एज यू कैन सी दैट द क्रिएटेड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैड इट्स इंडेक्स असाइंड ऑटोमेटिकली 0 ऑनवर्ड्स, just as it happens with series objects definitely, and the columns are placed in sorted order, और कॉलम्स बिल्कुल एक सॉर्टेड ऑर्डर में आपको यहाँ पर प्लेस होकर दिख गए। यू कैन स्पेसिफाई योर ओन इंडेक्सेस टू बाय स्पेसिफाइंग अ सीक्वेंस बाय द नेम इंडेक्स इन द डेटा फ्रेम फंक्शन। अब देखो अगर यहाँ पर आपको 0 1 2 3 4 इंडेक्स नहीं चाहिए और खुद का इंडेक्स चाहिए, तो आपने जो अभी लगाया था PD डॉट, मैं थोड़ा सा इसको पतले फॉन्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि दिख पाए मैं क्या लिख रहा हूँ, समझ में आ सके। ओके, जैसे आपने यहाँ पर पास किया PD डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन, ठीक है, आपने जैसे PD डॉट डेटा फ्रेम, जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूँ, PD डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन पास कर रहे थे, तो अभी आप यहाँ पे क्या लिख रहे थे, dict1 लिख रहे थे सिंपली, क्योंकि यही आपको प्रिंट करना था। और आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया था, एंटर दबाया था, और एंटर दबाते से आपको पूरा का पूरा रिजल्ट प्रिंट होकर मिल गया था। बट यहाँ पर अब हम कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे इंडेक्स इज़ इक्वल टू, और इंडेक्स इज़ इक्वल टू लिखने के बाद हम यहाँ पर जो भी हमको इंडेक्स की वैल्यू पास करनी है वो इंडेक्स की वैल्यू हम पास कर सकते हैं, और उस फॉर्म में इंडेक्स को चेंज किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर कर बताई हुई है, यहाँ पर इन्होंने इंडेक्स की वैल्यू को बदला हुआ है, और ये बदली हुई वैल्यू हमको, ये जो चेंज करी है, ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो वैल्यूज़ भी चेंज की जा सकती है एज़ पर आवर नीड, हम जैसा चाहें वैसे इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। अब इन्होंने एक और चीज़, एक एरर समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपके पास 5 रोज़ हैं, है ना, 5 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, और 5 नंबर ऑफ़ रोज़ पे अगर आप 6 नंबर ऑफ़ इंडेक्सेस पास कर दोगे, है ना, आपके पास वैल्यू कितनी है, 5 तक है, यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 5वां इंडेक्स आखिरी है, और आप यहाँ पर कितने इंडेक्स पास कर रहे हो, टोटल 6 इंडेक्स पास कर रहे हो। तो अगर आप कुछ ऐसा कर दो कि जहाँ पर इंडेक्सेस आप ज़्यादा पास कर दो, तो क्या होगा, जब आप इंडेक्सेस ज़्यादा पास करोगे तो डेफिनेटली एरर आएगी।
क्योंकि आपको इंडेक्स ज़्यादा पास करोगे तो आखिरी इंडेक्स में क्या वैल्यू स्टोर करेगा पता तो है नहीं, मतलब वो एक एरर है, आपने कुछ गलती करी हुई है, तो यहाँ पर एक एरर आएगी। और एरर क्या आएगी, तो ये देखो यहाँ पर एरर लिखी हुई है क्या, शेप ऑफ पास्ड वैल्यू इज़ 3,5, मतलब कि यहाँ पर 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और 5 नंबर ऑफ रोज़ हैं, और आपने जो वैल्यू पास करी है उसमें 3 नंबर ऑफ रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, और 6 नंबर ऑफ रोज़ हैं। जब ऐसा आप कुछ पास कर रहे हो तो आपके 5 और 6 बराबर तो नहीं होते, तो इसीलिए यहाँ पर आपने गलत इंडेक्सेस प्रोवाइड कर रखे हैं और आप लोगों को एरर देखने को मिलेगी। अब देखो, एज इट इज़ क्लियर टू अस, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, उस एग्जांपल को हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या इतने टॉपिक को समझने के बाद हम इस एग्जांपल को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। गिवन अ डिक्शनरी दैट स्टोर्स section names list as value for section key and contribution amounts list as value for country key। सबसे पहले तो समझो की क्या है, तो की कौन कौन सी है, की है आपका सेक्शन और की है आपका कंट्री, मतलब ये क्या बनेंगे आपके, ये बनेंगे आपके कॉलम नेम, और जो भी इनके अंदर वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ क्या बनेंगी आपकी, वो बनेंगी आपकी सारी की सारी डेटा वैल्यूज़, मतलब कि वो आपके रोज़ में यहाँ पर डिफ़ाइन की जाएंगी। इतनी चीज़ आपको देखते से पता चल जाना चाहिए। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये लोग आपको ये डिक्शनरी भी बना कर देंगे, तो देखो डिक्शनरी बना कर दी हुई है। ये आपके की हैं दोनों, सेक्शन एक की है और जो दूसरा मैंने मार्क किया है कंट्री वो एक की है, और इस सेक्शन नाम की के अंदर लिस्ट टाइप के फॉर्म में आपको ये वैल्यूज़ पास की गई हैं, और यहाँ पर भी लिस्ट टाइप के फॉर्म में आपको वैल्यूज़ पास की गई हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जो सेक्शन और कंट्री है वो कॉलम नेम में जाएंगे, और ABCD और जो 6700 5600 5000 5200 है वो आपके क्या बनेंगे, वो आपके एलिमेंट्स बनेंगे, वो आपके डेटा एलिमेंट्स बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएं, अब आपको क्या करना है, राइट अ कोड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम यूजिंग अबव डिक्शनरी। अब आपको ये डिक्शनरी का यूज़ करके एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो चलो ठीक है क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कर दिया इंपोर्ट पांडास SPD। अब डेटा फ्रेम को नाम देना पड़ेगा, पहला एग्जाम्पल है हमारा डेटा फ्रेम से रिलेटेड, तो हमने नाम दे दिया यहाँ पर डिक्ट, पहले तो डिक्ट1 बना ली, डिक्ट1 को क्या वैल्यूज़ दे दी, जो भी आपको प्रोग्राम ने बनाने को बोला है वो वैल्यूज़ दे दी, सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर अब आप देखना, अब यहाँ पर अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर अब हमने df1 इज इक्वल्स टू pd.dataFrame फंक्शन पास किया, और ये जो ऊपर डिक्शनरी बनाई इस डिक्शनरी को यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया, आर्गुमेंट पास कर दिया और प्रिंट कर दिया df1। जैसे ही आप df1 को प्रिंट करते हो तो df1 को प्रिंट करने पर इस तरीके का आउटपुट जनरेट होकर मिलेगा। इस आउटपुट में आप देखो, ये आउटपुट जो आपको जनरेट होकर मिला, इसमें जो ये इंडेक्सेस की वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आई है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आई हैं, ये आपने नहीं लिखी हैं। बट अगर आपको यहाँ पर लिखनी होती ABCD तो आप क्या करते, कॉमा लगाते, इंडेक्स लिखते और इंडेक्स इज इक्वल्स टू और लिस्ट के अंदर पास कर देते A, B, C, और D और ब्रैकेट कर देते क्लोज। तो अगर आप ऐसा कर देते तो ये इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से बदल कर अब क्या हो जाती, A, B, C और D हो जाती। तो हम इंडेक्सेस की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक और तरीका बताया हुआ है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का, किसका यूज़ करके, अब वैल्यूज़ को एज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट किया गया। इसको पहले वाले से कंपेयर करके देखो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। पहला वाला जो था उसमें क्या था, वैल्यूज़ किस फॉर्म में थी, वैल्यूज़ लिस्ट या एनडी एरे के फॉर्म में थी। देखा अभी हमने एग्जांपल के साथ, लिस्ट या एनडी एरे था, मतलब लिस्ट ही था वो, वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ था, लिस्ट के फॉर्म में डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर था। अब जो हम सेकेंड टाइप देखने जा रहे हैं, इस सेकेंड टाइप में देखो यहाँ पर वैल्यूज़ का जो आएगा, की वैल्यू पेयर होता है, तो जो की वैल्यू पेयर होता है, अभी जो आपका वैल्यू था वो वैल्यू एक लिस्ट था, बट अब क्या बोल रहे हैं, अब वो वैल्यू आपका क्या होगा, वो वैल्यू अब आपका डिक्शनरी होगा। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट की जगह अब क्या लगा होगा वहाँ पर, करली ब्रैकेट, क्योंकि डिक्शनरी करली ब्रैकेट में लिखी जाती है।
है ना। तो वहाँ पर अब क्या होगा, वहाँ पे लिस्ट ना पास होते हुए वहाँ पे अब क्या पास होने वाला है, तो वहाँ पे अब डिक्शनरी पास होने वाली है। तो चलो देखते हैं क्या होगा ऐसे में, कैसे इसको क्रिएट किया जा सकता है। तो देखो एक पीपल नाम की डिक्शनरी बन रही है। इस पीपल नाम की डिक्शनरी के अंदर एक की वैल्यू पेयर है, ये एक की है, ठीक है, और ये मार्केटिंग एक की है, ये दोनों की हैं। और इन दोनों की के अंदर ये जो है ये वैल्यू है, की वैल्यू का पेयर होता है, तो ये वैल्यू है। ये वैल्यू देखो किस टाइप के ब्रैकेट के अंदर लिखी हैं, ये वैल्यूज़ लिखी हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर। मतलब यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ पास हुई हैं, ये वैल्यूज़ किस फॉर्म में पास हुई हैं, तो ये वैल्यूज़ जो हैं, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, ये दोनों वैल्यूज़ एज डिक्शनरी पास हुई हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये एज अ डिक्शनरी पास हुआ वैल्यू है। अब देखो इसको कैसे क्रिएट किया है। सेल्स इज़ अ की, मार्केटिंग इज़ अ की, कोलन का साइन लगाया, वैल्यू लिखी, वैल्यू क्या लिख दी, नेम इज इक्वल्स टू रोहित, एज इज इक्वल्स टू 24, सेक्स इज इक्वल्स टू मेल। 3 वैल्यूज़ यहाँ पर पास करी हैं। अगले में देखो मार्केटिंग, तो नेम इज इक्वल्स टू नेहा, एज इज इक्वल्स टू 25, सेक्स इज इक्वल्स टू फीमेल। यहाँ पर इन्होंने देखो अभी तो इनर डिक्शनरीज जो थी ये आपकी आउटर डिक्शनरी है। देखो ये जो बाहर के ब्रैकेट्स हैं, ये और ये जो बाहर के ब्रैकेट्स हैं, ये आपकी आउटर डिक्शनरी है, और ये जो एक लाइन लिखी हुई है ये इनर डिक्शनरी है, और ये जो सेकंड लिखी हुई है ये भी आपकी इनर डिक्शनरी है। तो इनर डिक्शनरी और मेन डिक्शनरी में कंफ्यूज मत होना। इनर डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी के अंदर जो आपने डिक्शनरी क्रिएट की है उसको इनर डिक्शनरी बोलोगे, और जो मेन डिक्शनरी है बाहर उसको आप आउटर डिक्शनरी बोलोगे। अब यहाँ पर देखो ये की वैल्यू जो पेयर हैं, उन की वैल्यू पेयर्स के अंदर भी जो भी आपकी कीज़ हैं वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखो कीज़ एग्जैक्टली सेम है, नेम नेम, एज एज, सेक्स सेक्स, तो यहाँ पर ये सारी कीज़ सेम है। जब ये सेम है तो देखो सिंपल सा तरीका होगा इसका डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, और इस तरीके से आपका डेटा फ्रेम बनकर आपको मिल जाएगा। ये देखो जैसे आपने pd डॉट डेटा फ्रेम रन किया और ब्रैकेट के अंदर पीपल आर्गुमेंट पास किया, क्योंकि पीपल नाम की डिक्शनरी थी, तो आपका सिंपली ये एक पूरा का पूरा आपको डेटा फ्रेम बनकर मिल जाएगा। इस डेटा फ्रेम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस डेटा फ्रेम के अंदर एज, नेम और सेक्स जो यहाँ पर था वो आपके क्या थे, कीज़ थे। तो वो कीज़ को इसने एज अ इंडेक्स यूज़ कर लिया है, और जो भी आपके वैल्यूज़ थे वो वैल्यूज़ आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये की वैल्यू पेयर का यूज़ करके डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और इस तरीके से डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। बट हाँ चलो ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्रिएट एंड डिस्प्ले अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ 2-डायमेंशनल डिक्शनरी सेल्स विच स्टोर्स द क्वार्टर वाइज सेल्स एज इनर डिक्शनरी फॉर 2 years एज शोन बिलो। एक सेल्स नाम की डिक्शनरी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को। सेल्स नाम की डिक्शनरी है, उस सेल्स नाम की डिक्शनरी के अंदर इन्होंने 2 साल का डेटा क्वार्टर वाइज सेल्स का डेटा होल्ड कर रखा है, ठीक है, 2 साल का डेटा, और डिक्शनरी के फॉर्म में। तो कैसे होल्ड किया, तो देखो ईयर 1 ईयर 2 ये आपके क्या होगा, ये आपके हो गए की। तो जब ये आपके कीज़ हैं तो कीज़ आपके क्या बनने वाले हैं, ये कीज़ आपके ऊपर के कॉलम नेम बनने वाले हैं। अगला वैल्यूज़ क्या दी हैं इन्होंने, तो वैल्यूज़ अगेन ये पूरी की पूरी तो वैल्यूज़ हैं, बट ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ खुद एक डिक्शनरी हैं, और ये खुद एक डिक्शनरी है मतलब ये खुद एक की वैल्यू का पेयर है ना। तो ये खुद एक की वैल्यू का पेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, और देखो सारों के नाम भी एक जैसे हैं, ये चारों के नाम एक जैसे हैं। अब जैसे इसको मैंने क्रिएट किया, क्रिएट करना है एक डेटा फ्रेम, तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। सेल्स नाम की डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो चलो सेल्स नाम की डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ईयर 1 की, ईयर 2 की, QTR1, QTR2, QTR3, QTR4 जो वैल्यूज़ डालनी थी प्रोग्राम में दी हुई है एग्जांपल के अंदर, यहाँ पर जो वैल्यूज़ डालनी थी वो डाल दी, और आपने लगा दिया DF सेल्स इज इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन, और आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया सेल्स।
और प्रिंट कर दिया DF सेल्स, जो यहाँ पर आपने उस डेटा फ्रेम का नाम दिया था। जैसे ही आपने इसको प्रिंट किया तो आप देखो आपको जो आउटपुट मिला, उस आउटपुट में देखना जो आपका यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है, ये आपकी कीज़ हैं। और ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये आपके वैल्यूज़ के अंदर है ना, ये तो वैल्यूज़ के अंदर जो कीज़ थी वो वैल्यूज़ के अंदर वाली कीज़ को यहाँ पर लिखा है, और ये टोटली आपका वैल्यूज़ का कॉलम है इन एनी मैनर। तो ये इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। इस डेटा स्ट्रक्चर को एक बार ऊपर से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये ईयर 1 ईयर 2, तो जो आपकी कीज़ होती हैं वो ऊपर आपके कॉलम नेम में जाती हैं, और उसके अंदर की जो कीज़ होती हैं वो जो कीज़ होती हैं वो सारी की सारी आपके रो के सामने जाती हैं, और जो वैल्यूज़ बची जो चीज़ है वो वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ तो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अंदर ही स्टोर होंगी। तो इस तरीके से आपका डेटा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। ठीक है, अब अबाव एग्जाम्पल में देखो इन्होंने बोला है कि जो कि डिक्शनरी थी आपकी ईयर 1 और ईयर 2, उसमें सारे के सारे नेम और नंबर सेम थे, है ना। यहाँ पर देखो QTR1, QTR2, QTR3, QTR4, सारे नेम्स और नंबर्स सेम थे। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, जब सेम थे तो क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो थे आपके वो एक जैसे आ गए, है ना। बट क्या जब आपके नॉन मैचिंग कीज़ हो तब क्या होगा, जब नॉन मैचिंग कीज़ हो तो क्या होता है, वो यहाँ पर सारे का सारे जो आपकी नॉन मैचिंग कीज़ होती हैं उन सब का सम निकालता है और उतने नंबर ऑफ एलिमेंट जनरेट करता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करो। कलेक्ट 1 कलेक्ट 2 दो डिक्शनरी है, ठीक है। कलेक्ट 1 डिक्शनरी में देखो क्या वैल्यू है, तो ईयर 1 इज़ टू 1500, ये एक की वैल्यू पेयर है, और ईयर 2 इज़ टू 2500, ये एक की वैल्यू पेयर है। कलेक्ट 2 जो आपकी एक दूसरी डिक्शनरी है, उस दूसरी डिक्शनरी में देखो ईयर 1 2200, ये एक की वैल्यू पेयर है, और नील इज़ टू 0, ये एक आपका की वैल्यू पेयर है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी तक जो हमने देखा उसके जैसा काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर ईयर 1 तो एक जैसा की है, पर जो ईयर 2 और नील है वो एक जैसा नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या है, दो डिक्शनरी कैसी हैं, वो डिसिमिलर कीज़ के साथ बनी हुई हैं। जब कभी डिसिमिलर कीज़ आ जाएं तो ऐसे में क्या किया जाता है, हम एक बार इसको प्रिंट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने कलेक्ट 1 कलेक्ट 2 को कंबाइन करके एक डिक्शनरी बना ली, एक कलेक्ट नाम की इन्होंने कॉमन डिक्शनरी बना ली। उस कॉमन डिक्शनरी में क्या कर दिया, की क्या दे दी उसने, 1 इज़ टू कलेक्ट 1 और 2 इज़ टू कलेक्ट 2। मतलब कि 1 और 2 आपका कहाँ आएगा, तो 1 और 2 आएगा आपका ऊपर, की है तो की ऊपर आएगी, और कलेक्ट 1 और कलेक्ट 2 जो है वो आएगा आपका नीचे। तो कलेक्ट 1 और कलेक्ट 2 के अंदर जो 1500 2200 2500 जीरो है, वो सारा डेटा तो इधर आ जाएगा, और इस कलेक्ट 1 और कलेक्ट 2 का जो की है वो की यहाँ आएगी, ईयर 1 ईयर 2 वो यहाँ पर आएगी। तो एक बार आउटपुट को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने दोनों जो डिक्शनरी थी उन दोनों डिक्शनरी को कंबाइन करके एक कलेक्ट नाम की कॉमन डिक्शनरी क्रिएट कर ली। 1 इज़ टू कलेक्ट 1, 2 इज़ टू कलेक्ट 2, और इसका डेटा फ्रेम बनाया। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या किया, DF नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया और उसमें pd.dataFrame फंक्शन लगा दिया, और कलेक्ट जो मेरी ये वाली डिक्शनरी थी वो डिक्शनरी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। जैसे ही मैंने इस वैल्यू को पुट किया तो आप देखो मेरा आंसर क्या आया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो कीज़ नहीं थी, यहाँ पर कुछ डिसिमिलर भी थी। तो उसने क्या किया, जो सिमिलर थी उनको तो एक एक बार लिख दिया। ईयर 1 ही सिमिलर थी, उसके सिवा दूसरी तो सिमिलर थी नहीं। ईयर 2 के करस्पॉन्डिंग में क्या था, नील था। एक बार देखो, ये देख रहे हो ऊपर, यहाँ पर सिर्फ ईयर 1 जो की थी वही कॉमन थी, ईयर 2 और नील तो अनकॉमन थी ना, ये डिसिमिलर थी। सिमिलर कीज़ थी क्या, ये सिमिलर कीज़ नहीं थी। तो जब कभी सिमिलर कीज़ नहीं होती हैं तो ऐसे केस में डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है। तो कैसे बनता है, तो यहाँ पर वो तीनों को लिखता है, नील को भी लिखता है, ईयर 1 जो कॉमन था उसको भी लिखता है, और जो डिसिमिलर था ईयर 2 उसको भी लिखता है। अब सीधी सी बात है, नील, तो नील में क्या वैल्यू है,
तो देखते हैं हम नील में क्या वैल्यू है। ऊपर तो नील है ही नहीं, मतलब यहाँ पर तो नील की वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पर नील है, कलेक्ट 2 में नील है, तो कलेक्ट 2 में नील की वैल्यू है 0। चलो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कलेक्ट 2 में इन्होंने नील की वैल्यू डाल दी 0, बट कलेक्ट 1 में तो वैल्यू मिसिंग थी। तो हमको पता है मिसिंग वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, तो मिसिंग वैल्यू नैन से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पर उनने वैल्यू दे दी नैन, आप देख सकते हो यहाँ पर नैन वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ईयर 1 तो कॉमन था, तो ईयर 1 की वैल्यू कलेक्ट 1 कलेक्ट 2 दोनों में थी, तो 1500 और 2200 दोनों में आ गई। ईयर 2 में 2500 और नैन आया, कैसे आया देखो। ईयर 2 की जो वैल्यू थी वो आपके कलेक्ट 1 में तो थी, कलेक्ट 2 में थी क्या, कलेक्ट 2 में ईयर 2 वायर 2 नाम का तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट या की वैल्यू पेयर है ही नहीं। जब वहाँ पे कोई की वैल्यू पेयर है नहीं, तो ईयर 2 में सिर्फ कॉल जो कलेक्ट 1 है उसी में वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू मिसिंग है, तो ये मिसिंग वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, तो वो मिसिंग वैल्यू नैन से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका की वैल्यू पेयर यहाँ पर बना है। अब यहाँ पर देखो एक आखिरी एग्जाम्पल को समझो। यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, केयरफुली रीड द फॉलोइंग कोड। इंपोर्ट पांडाज एस पी डी, ठीक है। ईयर 1 नाम का एक डिक्शनरी लिया और ईयर 2 नाम का एक डिक्शनरी लिया। ईयर 1 नाम की डिक्शनरी में क्वार्टर 1 की और 44,900 दिस इज़ अ की वैल्यू पेयर, QTR2 46100 दिस इज़ अ की वैल्यू पेयर, Q3 57,000 और Q4 59,000। ये कुछ की वैल्यू पेयर है ईयर 1 के लिए, ठीक है। ईयर 2 के लिए क्या है, तो ईयर 2 के लिए है A 54,500, B 51,000 और QTR4 5700, ठीक है, 000। ये कुछ आपके यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स हैं। इतने एग्जाम्पल को देखकर समझो कि कॉलम के नेम क्या क्या आएंगे, तो कॉलम के नाम आएंगे YR1 YR2। बट क्या आप बता सकते हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ इंडेक्सेस होंगे? अगर आप DF3 PD.DataFrame और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये जो दो अलग अलग डिक्शनरी बनाई थी, इन दोनों डिक्शनरी को एक सिंगल डिक्शनरी बना लिया, उसको नाम दे दिया DI सेल्स 1 और उसमें इंडेक्सेस दे दिए 1:2 ईयर 1, 2:2 ईयर 2, ऐसे दो इंडेक्सेस दे दिए। तो यहाँ पर जब 1:2 ईयर 1 और 2:2 ईयर 2 इंडेक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 1 और 2, देखो ये कैसा बनेगा, 1 और 2 यहाँ लिखा आएगा और ईयर 1 और ईयर 2 यहाँ पर लिखा आएगा और इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो इधर पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर वैल्यूज़ बनाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ और समझना, यहाँ पर इन्होंने पूछा है, यहाँ पर इसको आपको टेबल में कन्वर्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आप लोगों को बताना है कि कितने आप लोगों के यहाँ पर DF3 में कितने इंडेक्स लेबल्स आएंगे। तो कितने आएंगे, QTR1 आएगा, QTR2 आएगा, Q3 Q4 आएगा, फिर A B और QTR4 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे, क्योंकि सारे के सारे वो है ना डिसिमिलर। तो 7 आपके क्या होंगे, 7 आपके यूनिक इनर कीज़ होंगे, है ना। और कॉलम के नाम कितने होंगे, तो कॉलम के नाम कहाँ से पता चलते हैं, तो कॉलम के नाम की वैल्यू पेयर की कीज़ से पता चलते हैं। तो कॉलम के नाम होंगे 1 और 2, ये होंगे आपके कॉलम्स के नाम। तो यही क्वेश्चन था और इन्होंने इसको यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर इन्होंने बता दिया। सेकंड जो टाइप है, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट और डिक्शनरी, इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज मैं अभी आप लोगों को ये वीडियो के ठीक नीचे आप लोग जो PDF देख रहे हो, आप ग्रुप में देखना, तो वो PDF को एक बार और पढ़ो और समझो। ये थोड़ा सा सीरीज़ ऑब्जेक्ट से अलग है, सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर से अलग है, आपको 1 से 2 बार पढ़ना पड़ सकता है चीज़ों को समझने के लिए, बट आप लोग एक बार देखेंगे तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल इफ़ यू फेस सम डिफ़िकल्टीज़, तो जब कभी जूम क्लास होगी तो आप लोग क्लियर कर लेना, पूछ लेना, मैं आप लोगों को इनके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट, so students, thank you so much for today's class. See you in the next class.